Myself, Professor Naveed Akhtar Mirza from Maulana Mukhtar Ahmed Nadwi Technical Campus. So this one is your third lecture of your management subject. So many times I remind you all the students that you should join the class on time, but still you are not following. So please take care of instructions and follow instruction by department and the subject teacher and the class teachers. Regular studies is a must for your development. So in the last lecture of management, we have seen about the importance of management, role of management, and various definitions on the management. In today's lecture, you can learn about the characteristics of management. Either you say the management characteristics. The importance of subjects is already told to you, and various definitions we have seen in last class. We have seen the role of management and importance of management. Also, we have seen the concept of management. So, various steps in the management, they are planning, organizing, directing, controlling, also the feedback system. We can say these are the concept of your management and different sections of your management. Now, the management characteristics, if you define universally, so there are several sections. First one, it is written the universal. So, management is universal in nature. The principle and concept of management are applicable to every type of industry. है ना? Maybe the activities are different, but the principles and the concept of your managing the things should be applicable to all type of industry, all types of organizations, whether it will be profit making or not, require management for managing their activities, and it is universal in nature. जैसे कि हमारे एनजीओज होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो क्या उनको मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हर जगह डिफरेंट होते हैं, हर लेवल पर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है. यू शुड use the principle and concept of management in all types of organizations, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका घर का कुछ घरेलू बिजनेस हो. एवरीवेयर वी नीड अ मैनेजमेंट, एवरीवेयर वी नीड अ प्लानिंग of the task. Everywhere we need to collect the material, raw material, and then everywhere we are producing some material and distribution and marketing also needed. So that's why the characteristic of management is that this is universal. It is not limited to one person or one organization or one area or one country. It is universal. So goal oriented, the management is should be goal oriented.
If there is no goal, then how you will work? Definitely, there must be some goal for your organization, for your industry, for your project. So this goal, because if there is goal, then only will work over that, है ना? जैसे कि हम सफ़र करते हैं तो हमारा कोई मकसद होता है, किसी के वहाँ शादी में जाना है, कहीं और दूसरे ज़िले में हमको जाना है, जैसे मालेगांव से नासिक जाना है, तो नासिक जाना ही आपका गोल है। तो आपको नासिक जाना है तो आप धुलिया की गाड़ी में बैठेंगे क्या मालेगांव से? नहीं, नासिक की गाड़ी में बैठेंगे। तो इसी तरह हमारा इंडस्ट्री का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे प्रोजेक्ट का गोल होता है कि हमको G+1 बिल्डिंग बनाना है, G+2 बिल्डिंग बनाना है, RCC स्ट्रक्चर बनाना है और इसमें ये मटेरियल इस्तेमाल करना है, और फिर हम उनके हिसाब से एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक्टिविटीज़ के हिसाब से मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, वो गोल फुलफिल करने के लिए हम ये सब काम करते हैं। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव्स, देयर ओन ऑब्जेक्टिव। आप ये पढ़ रहे हो सिविल इंजीनियरिंग, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है ना? आर लेड डाउन। Management achieves the organizational goals by coordinating the effort of personnel, है ना? तो हमारे गोल को फिल करने के लिए डिफरेंट हम सेक्शंस बनाते हैं, और फिर सबका काम ये होता है कि हम वो गोल को फुलफिल करें। जो गिवन टाइम है वो टाइम में हम अपने गोल को कंप्लीट करें। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमको प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, देन ऑर्गेनाइजिंग दैट एक्टिविटीज़, किस तरह करना है, देन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, and then we are directing to all different types of managers and supervisors, and then when the work is started, then we are controlling by taking feedback and other thing. I request the student they should join on time. They are joining in between, they are disturbing the class. तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग कर दिए, ऑर्गेनाइजिंग कर दिए, टास्क दे दिया और भूल गए उसको, ऐसा होता है क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, टास्क देने के बाद वी आर गोइंग एंड चेक कि प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं, है ना? RCC वर्क हमने किसको दे दिया, अब RCC वर्क दे दिया तो रेनफोर्समेंट को कटिंग करना पड़ता है, बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से उसको बेंड करना पड़ता है, और फिर उसकी अपनी जगह पर हमको प्लेस करना पड़ता है। तो दीज आर डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटी। अब वो बराबर हो रहा है कि नहीं, हमने बार बेंडिंग शेड्यूल दिया, बेंड करना था 30 सेंटीमीटर, वो 40 सेंटीमीटर बेंड कर दिया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, कि हमने जो काम दिया है, जो हम लोग को वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, दैट इज गोइंग और नॉट प्रॉपरली। तो इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अब हमने कोई टास्क दिया और टास्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या होगा, वहाँ से हमको फीडबैक आ, वापस से फिर हम रीऑर्गेनाइज करेंगे और फिर रीडायरेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं इसको ऐसे कीजिए, विल गेट द गुड प्रोडक्शन और गुड क्वालिटी प्रोडक्शन, एंड विल गेट द बेस्ट एडवांटेजेस। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना? मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के ज़रिए। तो इस तरह ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है आपके मैनेजमेंट की। चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल ओनली, but it also manages work, process and operations, which makes it multi-dimensional. इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, यानी जो एडमिन के पीपल है उनके हाथ में नहीं है कि मैनेजमेंट करना। हमारे पास एवरीवेयर देयर आर डिफरेंट सेक्शंस। आप कोई इंडस्ट्री अगर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल
अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क ये लेते हैं, समझ लो हमारा एक प्रोजेक्ट है, ब्रिज हमको बनाना है। अब ब्रिज बनाने के लिए हमारा प्लानिंग वाले, सर्वेइंग वाले, हमारे डिज़ाइनिंग वाले, एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर, दे ऑल आर डिफरेंट। तो एट डिफरेंट लेवल देयर आर डिफरेंट मैनेजर्स, and and they are admin level, design level, planning level, processes and operation level. Huh? All level are sectionized, separated. So this is the characteristic that management is a multidimensional. It is limited, not limited to the administration only. है ना? ऐसा नहीं है कि जो जनरल मैनेजर है, इट विल लुक आफ्टर ऑल द वर्क। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है प्रोडक्शन मैनेजर को, वो डायरेक्ट करता है प्रोक्योरमेंट मैनेज के कि तुम ये टाइम में ये मटेरियल चाहिए, वो डायरेक्ट करता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, वो डायरेक्ट करता है आपका फीडबैक जो आपको देता है कि क्या काम हो रहा है फील्ड पे, साइट सुपरवाइजर। तो लाइक वाइज डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल टास्क इज गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज the multi-dimensional. The management is multi-dimensional. It is the unifying force which integrates human and other resources to obtain the desired objective. Definitely, the objectives is our fixed and they are desired. Our target is fixed, our goal is fixed, we are working to achieve that goals. उसके बाद पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो आपके मैनेजमेंट के दैट इज द ग्रुप एक्टिविटी। An organization consists of various uh, members who may different needs, expectations. Who is this Hamad? Please join on time. Don't disturb the class. Otherwise, I will not let you come in next time. So this requires supervision, teamwork, coordination, and is achieved by the management. जैसे कि मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस मेंबर्स है ना, एक मेंबर से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। एवरी पर्सन ज्वाइंस ऑर्गेनाइजेशन विद अ डिफरेंट मोटिव, है ना। जो मकसद आपका है, एक एडमिनिस्ट्रेशन मकसद है, दूसरा जो प्रोडक्शन का है वो प्रोडक्शन के और प्रोसेस ऑफ मशीन्स देखेगा, कुछ मेंटेनेंस एंड रिपेयर के आपके एक्टिविटी है, they will look after that. Someone taking about the marketing work, someone taking about the advertising work, someone working on the field to get the feedback from the end user. So this is nothing but the single, this is the group activity. Management is not for the single person, or it is for all the people join with the organization, but they are working in the same goal. Okay, so this is the fifth characteristic of your management. Then the dynamic function, the management characteristic, sixth characteristic is the dynamic function. मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक बोले तो एक जगह हम बैठ के काम कर सकते हैं क्या? स्टैटिक हमने दे दिया बस काम हो जाएगा, ऐसा ना। वी आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड टेक्निक्स आर डेवलप, है ना। जैसे कि हमने कोई प्रोसेस बनाया कि भाई हमको ये प्रोडक्ट बनाना है ना। पहले आप मटेरियल लाओ, मटेरियल को मिक्स करो, मटेरियल को कास्ट करो और फिर उसको क्यूरिंग करो और फिर हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले हम क्या करते थे कि मिक्सिंग मैनुअली करते थे, लेकिन हमको मशीन मिल गई, टूल्स मिल गए, तो अब मिक्सिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं। पहले हमको अगर वाइब्रेशन करना, कॉम्पेक्शन करना पड़ता था तो हाथ से करते थे, लेकिन हमको मशीन हो गई, टूल्स मिल गए। सिमिलरली क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग एजेंट आ गए। तो इस तरह मैनेजमेंट इज डायनामिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमको जो उसके प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, दे आर चेंजिंग, है ना। बार चार्ट पहले हम बनाते थे, पाई चार्ट हम बनाते थे, लेकिन अब नई नई टेक्निक आ गई, नेटवर्किंग टेक्निक आ गई, एक्टिविटी को प्लानिंग करने के लिए क्रैशिंग कितने कम टाइम में क्या होगा, ऐसे जिसम स्ट्रीम CPM पर्ट आ गया।
और अभी तो हमारे पास एआई और एमएल, जैसे कि आपको मालूम है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल यानी मशीन लर्निंग। अब तो ऐसे आ गए कि मशीन ऑटोमेटिक देख कर रन करती है और फिर अपने आप को इम्प्रूव करती है। तो ये उसके ताल्लुक से इसी तरह मैनेजमेंट में डिफरेंट प्रिंसिपल और कंसेप्ट आते हैं डे टू डे। हमको अपडेट रहना चाहिए एंड वी कैन डू दैट्स व्हाई इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो इट इज अ डायनामिक फंक्शन, इट इज नॉट static function. The working of an organization depends upon various factors like social, political, legal, technological, economical, etc. तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ एक नहीं होता है और एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता है। सोशल रिलेटेड टू द पीपल, पॉलिटिकल रिलेटेड टू द सियासत and politics, and legal means the bylaws of your countries and regions are different, you have to follow that। टेक्नोलॉजिकल यानी न्यू टेक्निक्स एंड इकोनॉमिकल आल्सो यानी कितने सस्त कम खर्चे में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं कि हम उसका एंड जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकें। तो ऑल दिस आर रिलेटेड एंड दे आर डायनामिक, है ना। सोशल नीड्स आर different at different regions, political pressures are different at different regions, legal and acts are different for different countries and regions। Similarly, technological, we have to improve day by day, and we have to use the latest machineries and tools to get good quality product and in large quantity। A slight change in any of these factors will affect the organization growth and performance। To overcome these changes, management formulates strategies and implements them। तो इसके लिए डे टू डे जो चेंजिंग हमारे होते हैं कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स में और टेक्निक्स में, हम उसके अंदर डे टू डे इसको रीड करके और इम्प्लीमेंट करके हम चेक करते हैं, नई स्ट्रेटजी बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन और गोल अचीवमेंट के लिए। 7 is the authority। तो मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक 7 authority means it represents a system of authority, a hierarchy of command and control। Manager at different levels possess varying degree of authority, है ना। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको चलाना है तो उसमें हायरार्की फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपके क्लास में समझ लो 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 स्टूडेंट सब आकर क्लास टीचर से एक एक बात करेंगे, जो भी आपके इश्यूज रहेंगे वो चलेगा क्या? नहीं। वो उसमें से आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है और क्लास का मॉनिटर फिर आपको लीड करके आपके क्लास टीचर के पास जाता है। क्लास टीचर आपके जो पॉइंट्स है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास रखते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपकी बातें जो है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, कल्चरल कोऑर्डिनेटर या डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटर है उनके पास रखते हैं। तो दिस आर द हायरार्की। तो इसी तरह इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर के नीचे आपके प्रोडक्शन मैनेजर, सर्वेइंग के आपके जो है साइट मैनेजर, और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के वो मैनेजर, दे ऑल आर डिफरेंट और देयर गोल्स आर डिफरेंट, देयर टारगेट्स आर डिफरेंट। तो these are come under the authorities। So that's why there is also financial management also। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स आर ऑल्सो देयर इन द इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। Then the principles of management, if you will see, so there are many scientists, they are given different principles, that is Taylor's principle of scientific management। So F.W. Taylor is regarded as the father of scientific management। His principle of scientific management are, so we'll see the different principles of management one by one, and the scientists or expert, you can say earlier they are studied about the some rules for the scientific management।
So scientific management is also one section. We have to work in the research and in the technology and to get some basic uh, to provide some basic needs to society and nation with proper management. So F.W. Taylor is regarded as the father of scientific management, है ना? So maybe in exam you will ask the question, who is the father of scientific management? So you can able to write that F.W. Taylor is the father of your scientific management. His principle of scientific management are the following are the some scientific management principle set by the F.W. Taylor. Uh, we will see one by one. First one, science, no rule of thumb. Science is no rule of thumb. What is thumb rule? थंब रूल मीन्स हम कुछ स्टडी करते हैं, कुछ हम डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखते हैं और विदाउट कैलकुलेशन हम कुछ सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ द थंब रूल। लेकिन साइंस क्या बोलता है कि थंब रूल नहीं चलेगा साइंस में। दिस मीन्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू स्टडी वर्क and determine the most efficient way of performing specific task instead of working by rule of thumb or habit। तो कोई भी थंब रूल आपका साइंस के अंदर नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी, यू टू रिसर्च, आपको तहकीक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको कुछ प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे, थेरीज डिफाइन करना पड़ेगी एंड दैट इज टू बी फॉलोड। थंब रूल सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ये इसके अंदर चलेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ये किसने कहा? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने। The development of each and every person to his or her greatest efficiency। इसमें और क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यानी जो भी काम हम किसी को लगा रहे हैं तो उसके स्किल्स कैपेबिलिटीज शुड बी गुड। It means that in organization or in industry, employees should be scientifically selected and placed depending upon their skill, capabilities and aptitude। ऐसा नहीं है कि एक को प्रोडक्शन में अच्छा नॉलेज है और हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं। एक बंदे को आरसीसी का काम अच्छा आता है और उसको मैसनरी में हम लोग डाल रहे हैं, तो डेट इज नॉट लॉजिकल। तो इसके लिए तो ईच पर्सन वी हैव टू जज his skills, his capabilities and उसका aptitude and then we will place at the proper location। Then third principle of the F.W. Taylor for the scientific management is harmony, not discord। Harmony means there should be complete agreement on ideas and opinions between workers and management। Discord or difference in opinion will lead to conflict, है ना? जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे प्रोसेस में हो, चाहे आपके कुछ और वर्क में हो, लेकिन ये डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में होना ज़रूरी है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के हमारे मेथड्स होने चाहिए और हर वर्कर अपनी हार्मोनी में काम करे जो आपका गोल है उसके अचीव करने के लिए। हार्मोनी रहेगी तो वर्क प्रॉपर होगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो वर्क आपका प्रॉपर नहीं होगा और सक्सेस नहीं होगा। इसी तरह कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कॉपरेशन शुड बी देयर। कहीं पर आपको कोई ज़रूरत है, किसी और सेक्शन में कुछ ज़रूरत है, यू विल कम फॉरवर्ड एंड ओवरकम and cooperate the people। This lays stress on mutual cooperation between workers and the management। Cooperation, mutual confidence, sense of goodwill should prevail among both managers as well as workers। It will replace internal competition with the cooperation, है ना? हमारे पास एक फैक्ट्री में या एक इंडस्ट्री में
there are many pupils are working, and if you are cooperate each other good, then the work will be in harmony, and you will get the and you will achieve the task in the specified time. अदरवाइज अगर कॉपरेशन नहीं रहेगा, मैं बोलेगा नहीं मैं ऐसा करूँगा, वो बोलेगा मैं ऐसा करूँगा, वो बोलेगा ऐसा करूँगा, एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, then the work will not be with cooperation, and it will hamper the our production. Then you will see the maximum output in place of restricted output. The maximizing the production efficiency, the earnings of employees will be increased. Definitely. अभी अगर एक फॉर एग्जांपल 1 घंटे में मैं 50 प्रोडक्ट बनाता हूँ, है ना, लेकिन मुझको मालूम पड़ा कि मेरे बाजू में इंडस्ट्री है या कहीं पर और इंडस्ट्री है और वो 1 घंटे में 60 प्रोडक्ट बना रही है, तो कैसे बना रही है ना। अब मेरी अर्निंग क्या है, प्राय 50 प्रोडक्ट की है, बाजू वाला अर्न कर रहा है 60 प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे एम्प्लॉय का सबका लॉस हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा मेरी अर्निंग होगी, उतना ज़्यादा मैं बेनिफिट्स मेरे एम्प्लॉयज़ को दे सकता हूँ, है ना। तो उसके ताल्लुक से नई टेक्निक्स को देखना और पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना और आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, दैट इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सेड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर. Then the financial incentives. According to this principle, the wages paid should be as per performance of worker. An efficient worker should be paid more than an efficient worker. आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो मुकादम को ज़्यादा पगार रहती है बनिस्बत के जो वीवर हैं। मुकादम एक जगह की बजाय 2-3 जगह भी काम करते हैं, लेकिन जो एक लेबर एक मशीन पे है तो वो मशीन अपनी छोड़ के नहीं जा सकता। तो वेजेस ऑफ दैट, और अगर आप देखें कि एक लेबर उसका आउटपुट ज़्यादा है, एक लेबर का कम है, डेफिनेटली यू विल गिव मोर टू द वर्कर हु विल गिव यू द मोर प्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, so that is the financial incentives to the workers. Now these are the principles said by the F.W. Taylor for the scientific management. So it uses the scientific approach throughout the management activities. Mathematical models are used to bring an innovation and radical changes in the organization. तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि थंब रूल कहीं नहीं चलेगा, हर जगह आपको स्टडी करना है, हर जगह कैलकुलेशन करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो दिस आर द वेरी इसेंशियल एंड यू कैन do that. Also, we can see the some difference between the scientific management and conventional management is given in the management paper solution MSBT by the Techno publication. I think so. You will get and you can use that. So you can see this 1.1.7.1. So you can see the scientific management. Scientific management uses scientific approach to execute management functions. अगर आपको डिफरेंस पूछा गया कि क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या है, तो आपको ये डिफरेंस आप बता सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच होता है, थंब रूल नहीं चलता। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट डू नॉट फॉलो साइंटिफिक अप्रोच, है ना, दे आर फॉलोइंग द थंब रूल. Similarly, you can see in scientific management, selection of the worker is based on scientific approach and skill set of the worker, whereas in traditional management no scientific approach and skill set
criteria is used for workers selection. तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं. Then performance and standard and pay scales are designed to motivate the worker. जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट वर्कर को डिफरेंट इंसेंटिव्स दिया जाए. जिनके प्रोडक्शन अच्छे हैं, जिनके काम अच्छे हैं, जो स्किल्ड हैं, दे विल गेट गुड वेजेस, है ना. तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ट्रेडिशन में ऐसा कुछ भी हम परफॉर्मेंस नहीं देखते. और पे स्केल्स आर, लेबर है तो 300, मुकादम है तो 500, लाइक वाइज वी आर सिटिंग एंड वी आर गिविंग. नाउ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स कोऑपरेशन इज फोकस्ड. इन मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्कर्स कोऑपरेशन इज फोकस्ड, वेयर एज इन ट्रेडिशन दे आर नॉट फोकस्ड, है ना. तो कोऑपरेशन improves the productivity, so that's why it should be whole. And many such things we have seen in the scientific management. Now we'll see the principle of management said by the Henry Fayol's principles of management. So this manual I have given to you, you can see this. He said around 14 principles of management. Henry Fayol was one of the renowned management thinkers. He was a French mining engineer. माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने 14 प्रिंसिपल सेट किए. द फॉल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क. यानी वर्क को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए. पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क. फिर उसके बाद यू कैन सी द यूनिटी ऑफ द कमांड. यानी 10 कमांड देने वाले 10 लोग नहीं चाहिए, कोई एक ही हो जो कमांड दे और उसको फॉलो किया जाए. 10 लोग या 2 लोग भी अगर कमांड दे रहे हैं तो सोचेगा कि किसकी बात सुने वर्कर. देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल, है ना. यानी turnover of the employees, rate of number of employees leaving the job and number of employees joining the job. This is also very important. कितने लोग काम पर आ रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, आगे हमको क्या करना है, कितने वर्कर नीडेड है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा. All these are the stability of tenure of person. Then discipline is very important at the workplace, है ना. Discipline is very important. Not only for the individual but for the organization too. टाइम पर आना, लेट नहीं आना, जो टाइम पर हमारा वर्क शुरू करना, all this should be managed. एप्रॉन पहनना, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, टूल यूज़ करने का, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और ये थिंग उसको फॉलो करना. दीज आर कमिंग इन द डिसिप्लिन. देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप देखेंगे अथॉरिटी इज रिफर टू अ राइट फॉर गिविंग ऑर्डर्स एंड पावर टू इंश्योर ओबीडियंस. अथॉरिटी, अब प्रोडक्शन मैनेजर को जनरल मैनेजर ने कोई काम बोल दिया है, अब जनरल मैनेजर जाकर थोड़ी साइड पर आपके सुपरवाइजर को बोलेगा डू दैट डू दैट. then this production manager will go and then will instruct that you have to word this, he give order and the order are to be followed. Who is the authority? प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर. मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन मैनेजर जाकर मार्केटिंग को थोड़ी बोलेगा आप ऐसे काम करो. तो प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर इज द अथॉरिटी फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड अदर प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन. और उसके ऑर्डर को जो उनके सब ऑर्डिनेंस है दे विल फॉलो. यूनिटी ऑफ कमांड इसी को बोलते हैं कि जो हमारे काम है वो अपने काम के हिसाब से mainly focuses on the specific authority that guides their subordinates about the work
and the work to be done in the specific time. Then unity in direction. It means unity of authority and plan of direction. In an organization, there should be a centralized authority and unique plan of action. है ना? डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन आप अपने अपने हिसाब से नहीं बना सकते, डिफरेंट गोल हम सेट नहीं कर सकते, आपका एक गोल है और उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो विल के say that this is the unity in the direction. Then subordination of individual interest to general interest. So you can see the interest of the subordinates. Many employees are working in an organization. The aim towards which they are working has to be interest of organization. यानी जो भी आप काम कर रहे हो, it should be in the interest of organization. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के या विज़न या उसका जो मिशन है, जो सेट है, उसको छोड़कर अगर आप करते हो, इट विल हैम्पर द विज़न एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन रिम्यूनरेशन, जैसे कि हम जो वर्क करते हैं हमको उसका तखमीना मिलना चाहिए, हम जो करते हैं आउटपुट यानी उसका अवार्ड मिलना चाहिए. तो सैलरीज वेजेस शुड बी सेटिस्फाइंग टू एम्प्लॉय. अगर सेटिस्फाइंग सैलरी एम्प्लॉयज़ को है तो विल वर्क डेफिनेटली गुड, अदरवाइज इट विल हैम्पर. सेंट्रलाइजेशन इज मस्ट. आपका ऑर्डर सेंट्रल प्लेस से एक जगह से आना चाहिए. Centralization has got many positive aspects. It helps organization things properly. Also, major advantage is keeping control. Centralized control is better than decentralized control. यानी the hierarchy should be followed and the order is coming from one section to the another section, and it should be in hierarchy and the process will be centralized process. अगर it is not in the proper manner, then it will hamper the work and management. Then scalar chain. Organization is generally a hierarchical structure. There is always a chain of authority instead of single authority. जैसे कि हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजर भी आप भी उसी को बोलेंगे कि हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे प्लेसेस पे, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, डिफरेंट, और फिर वो चेन को हम मेंटेन करते हैं. दैट इज़ द स्केलर चेन, लीनियर चेन, एंड दैट शुड बी फॉलोड. एंड जनरल दिस फ्लो ऑफ चेन और डायरेक्शन ऑफ चेन इज फ्रॉम हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक. यानी आपका ऑर्डर ऊपर से आपको जो आता है, इट इज फॉलोज प्रिंसिपल से, छोटे छोटे से क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से आपके क्लासरूम में. So that is to be followed, and that chain should be followed. Equity. Equity means equity is in organization a blend of kindness and justice. अगर जस्टिस नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस भी देखा, equity has to be maintained in the organization while treating the employees. इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? एक स्किल लेबर है, अगर स्किल लेबर, अगर दोनों को मैं एक जैसा वेजेस दूंगा, एक जैसा अवार्ड दूंगा, तो क्या होगा कि जो ज़्यादा काम करेगा वो बोलेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना. तो दिस शुड नॉट बी हैम्पर इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन इनिशिएटिव refers to the planning. Only planning is not sufficient. It is to be ensured that work is done as per the plan made, and its successful execution is the key motivator. तो कोई भी काम करने के लिए इनिशिएटिव चाहिए, है ना. स्टार्टिंग में जब कोई भी नया काम आता है तो लोग डरते हैं, नए प्रिंसिपल, नए कंसेप्ट आते हैं तो लोग डरते हैं काम करने के लिए. तो उसका इनिशिएशन ज़रूरी है. तो आपका जो मैनेजर है वो सिखाएगा, नहीं नहीं ये टूल है, अगर आप यूज़ करोगे तो यू विल गेट बोर्ड प्रोडक्शन है, हाउ टू यूज़, उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं. तो दैट इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय द इंडस्ट्री और द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन द एम्प्लॉय. एंड देन लास्ट वन, if you see the speed the cops,
यानी टीम वर्क, स्प्लिट द कॉप्स यानी टीम वर्क, देयर शुड बी अ टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सब मिल के एक गोल पर काम करेंगे डेफिनेटली विल गेट गुड प्रोडक्शन, गुड आउटपुट रादर देन हम डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करें। टीम वर्क स्पिरिट इंश्योर्स हार्मोनी इन एंड यूनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो टीम वर्क जो है दिस विल help to maintain the harmony in the organization. So these are the 14 principle of your Henry Files you should remember, and many MCQs and objective type questions are asked in the examination. So if you will work, then you can. So these are the explanations also given in your manual. You can read down and understand. मैंने आपको समझा दिया है क्या है, और इसी तरह आप अपने लेवल पर भी इसको समझ सकते हैं बाय स्टडीइंग ऑल दिस थिंग। ओके, तो यूनियन इज़ द स्ट्रेंथ। तो अगर आप मिल के काम कर सकते हो तो डेट इज़ द वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड डेट इज़ द now in coming next lecture we will see the levels of management and their functions. So we will stop here. Thank you joining. If any doubt you can ask with me, and